Hi friends, welcome to my Dvija. Hi Dr. Neha. Today's video we're going to talk about early signs of special children और abnormal children. Yes, हम लोग आज के वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे. आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं early signs of autism, early signs of ADHD, early signs of cerebral palsy or any lying mental disorder. Few of those special things जिसके कुछ early signs and symptoms क्या हम लोग check कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, बच्चों में देख सकते हैं, and it can actually help us to get them out from the lying cause very fast. इसके लिए हमारे साथ है the expert in this particular field. She is Dr. Neha Tambe. Hi Dr. Neha. Hello. उसने दिल से मुझे एक लाइन बोली हुई मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है. And she said, श्रेया आपको पता है बच्चा जितना लेट हमारे पास आता है उतना ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा टाइम लगता है. Right. अगर कुछ अर्ली साइंस पेरेंट्स ढूंढ के जल्दी बच्चे को हमारे पास लेके आ सके तो आई थिंक वी आर गोइंग टू एक्चुअली हेल्प चाइल्ड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट. सो नेहा, Yes. माय फर्स्ट क्वेश्चंस टू यू. एक्चुअली बच्चों में ऐसे कौन से न्यूरल डिसऑर्डर्स है जो बहुत कॉमनली पाए जाते हैं? Like in our society, most of them is cerebral palsy, autism, and ADHD. Cerebral palsy is the one where the child has the more abnormality with physical, that is movement and development, posture, movement. ये इसमें ज्यादा abnormalities दिखी जाता है in cerebral palsy. Along with that, they may have some psychological also, like mental retardation group can also be there with cerebral palsy. Then in autism, more of the child has the abnormality in social and communication skill along with mental retardation. Okay. And ADHD is the totally another in which the child may be autistic. With that, the child has difficulty in attention, hyperactivity. ओके, भी समझो बच्चा पैदा हो गया. हाँ. नेहा, बहुत सारे घरों में ना बहुत बेसिक चीजें होती है. लोग गूगल पे ढूंढेंगे कि अरे बाप रे तेरा बच्चा अब तक क्रॉल नहीं कर रहा है, नॉर्मल है कि नहीं है. अरे बाप रे तेरा बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, नॉर्मल है कि नहीं है. सो मुझे एक्चुअली ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स टू कैच एनी डिसेबिलिटी इन चाइल्ड. ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं क्या? Early screening, it starts from the 0 to 3 months itself, when the baby is born. First and foremost thing, जब newborn babies में the pediatrician check करते ही है, like when the child is in hospital, once the mother and the child gets discharged, initially ये देखना चाहिए कि बच्चे के movement कैसा है. यूजुअली अगर नॉर्मल बच्चा होता है तो उसके हैंड एंड लोअर लिप, हैंड एंड पैर के मूवमेंट्स काफी होते हैं, वो खेलता रहता है. Right. कुछ बच्चे जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, दे आर मोर ऑफ स्लीपी ओनली. बहुत ज्यादा स्लम्प होते हैं, बहुत ज्यादा आलसी होते हैं कि दे स्लीप फॉर द होल डे ओनली. नो डाउट नॉर्मल बच्चा भी सोता है, बट नॉर्मल बच्चा जब उठता है वो थोड़ा भी खेलता है, प्रेजेंट होते हैं. जगा हुआ बच्चा भी अगर हाथ पैर के मूवमेंट ज्यादा नहीं करता है, हाँ, तो आपको चेक. सी एट द सेम टाइम ये एक साइन ऑफ डिहाइड्रेशन भी है. तो हम लोग सिर्फ स्पेशल चिल्ड्रन का नहीं बोल रहे, बट अगर मूवमेंट्स नहीं हो रहा है तो आपको चेक करने की जरूरत है. शायद से कुछ तो भी गड़बड़ है. Not necessary for the neurological disorder, as you said, dehydration. Many factors can be there. ये ऐसे नहीं कि ये सिर्फ इसके लिए होता है, but this is important step to know the further step. Right. Very good. Second thing, बच्चा usually 0 to 3 months में eye contact करता है. मम्मा जब उसके नाम से या कुछ जो भी बुलाती है, बच्चा देखता है, नजर देता है. Okay, he responds at least looking at the mother. Okay, eye contact होता है, social smile. At least he smiles looking at his mother. Might be second month, third month के आसपास. Yeah, it can be from 0 to 3, 4 months तक होता है. Not necessary वो second month में आता है. ये month का between these months can be old. Right. Okay. Until 5th month बच्चा neck hold करता है. Very important. Neck holding is the first physical milestone, motor milestone हम बोलते हैं. Usually it should be there. Neck holding आता ही है 3 to 5 months, max 5 months. उसके आगे नहीं.
5 मंथ तक आना ही चाहिए नेक होल्डिंग, सुपर। तो नेक होल्डिंग, आई कांटेक्ट एंड सोशल स्माइल, सोशल स्माइल। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये 3 में से कुछ मिसिंग है तो आपको पीडियाट्रिशियन से बात करके रिस्पेक्टिव एक्सपर्ट को मिलने की जरूरत है। रिस्पेक्टिव एक्सपर्ट, राइट। उसके बाद लाइक 0 to 3-4 मंथ्स तक नेक होल्डिंग आ गया, टिल 6 to 7 मंथ्स बच्चा पेट पे जाता है, राइट, रोलिंग दिस, रोलिंग फ्रॉम सीधे सुपाइन पोजीशन टू प्रोन पोजीशन, दैट इज वंडरफुल, सीधे से वो पेट पे जाता है, ओके, वंडरफुल। रोलिंग आता ही है व्हेन टिल 6 to 7 मंथ्स। तो 7वें महीने तक बच्चा बैक पे से पेट पे खुद होके जाना चाहिए। जाना चाहिए, वंडरफुल, बैक पे खुद पे जाना ही चाहिए। वंडरफुल। And कोई with बच्चा 15 दिन पहले करेगा, कोई बच्चा 15 दिन बाद करेगा। these months can alter, like 15 days plus minus is totally okay. हाँ, अगर Wonderful. बच्चा मेरा 1 साल का है एंड स्टिल वो रोलिंग नहीं कर पा रहा है, दैट इज अ बिग इशू देन। राइट, राइट। और तो फिर बहुत निग्लेक्ट करने में ही मतलब नहीं है। 7वें 8वें महीने में ही आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना ही चाहिए, वंडरफुल। ओके। सिमिलरली आफ्टर रोलिंग द बच्चा बैठना सीखता है, सिटिंग सीखता है, पहले सपोर्टेड फिर अनसपोर्टेड, मतलब बच्चा पकड़ के, मम्मा को पकड़ के या जो भी है उसको पकड़ के बच्चा बैठने सीखता है, फिर आफ्टर एज एन हाउ इट डेवलप फिर विदाउट सपोर्ट भी बैठ ही जाता है। यूजुअली दिस अकर्स बिटवीन 7 to 8 months, लाइक टिल 8 months बच्चा बैठ ही जाता है, एटलीस्ट एकदम पकड़ के बैठेगा और अगले 1 महीने भर में खुद होके भी बैठ जाएगा। बैठ ही सकता है, okay, वंडरफुल, till 8 months, 7 to 8 months, until 9 months with supported, पकड़ के स्टैंडिंग भी करता है बच्चा, राइट। भले ही पेरेंट्स का हाथ पकड़ के या किसी कुछ चीज को भी पकड़। पेरेंट्स या एनी ऑफ द फर्नीचर, सोफा वगैरह जो भी है वो पकड़ के खड़ा रहना ही टिल 9 मैक्स टू मैक्स 10 months तक सपोर्टेड स्टैंडिंग आता ही है। ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट। यू शुड नॉट मिस, अगर 1.5 साल का बच्चा है एंड स्टिल खड़ा नहीं रह रहा है, यू शुड थिंक, कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है, नो डाउट। नेहा, मेरे ही बच्चे का यार, मेरा जब भी बच्चा फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया तभी हार्डली वो पकड़ के खड़े रहते थे, मतलब। और हम लोगों ने खड़ा किया तो खड़ी रह जाती थी, बट हाँ, खुद बट होके जो, हाँ, खुद होके जो खड़े रहना है वो उसने फर्स्ट बर्थडे के आसपास किया। 12 to 13 months थोड़ा सा फर्स्ट स्टेप विदाउट सपोर्ट स्टैंडिंग हाँ, होता है, राइट। 12 to 13 months तक। ऐसे थोड़ा सा हिल हिल के चलते हैं, हाँ, राइट, बट मतलब। 1-2 स्टेप्स करते हैं बच्चा गिर जाता है। हाँ, बिटवीन दिस लाइक 1 year to 13-14 months तक, 12 to राइट, 13-14 months तक 1-2 स्टेप्स आता ही है, एंड बाय 2 years कंप्लीट वॉकिंग अच्छे से करता ही है बच्चा, वंडरफुल, वंडरफुल। ओके। एंड विद दिस ऑल्सो, ये सब जो हमने बोला ये सब फिजिकल डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट है ऑफ हाँ, मूवमेंट, चलना बैठना, ये सब फिजिकल में आ जाता है। राइट, along with that you should think for speech also, ओके। speech is very important, because कुछ बच्चे अगर हमने देखा तो नॉर्मली चल फिर रहे बट ही इज नॉट एबल टू स्पीक, ऑटिज्म में काफी बच्चे ऐसे होते हैं, स्पीच इज एब्सेंट, ऑफ कोर्स बाकी फैक्टर्स भी होते हैं, बट यू शुड नॉट नेग्लेक्ट फॉर दैट आल्सो, लाइक यूजुअली 0 to 3 months, इन दिस मंथ ओनली बच्चा कोइंग स्टार्ट करता है, बैबलिंग करता है, मतलब बा बा ऐसे कुछ तो चालू रहता है बच्चा। हाँ, राइट राइट, ये जो बैबलिंग होता है ना यूजुअली 0 to 3 months में आ ही जाता है, बाय 2 to 9 months बाबा पापा ऐसे जो छोटे छोटे राइमिंग वर्ड्स है ना, बाबा पापा ऐसे बोलता ही है बच्चा। गुड, माइट बी क्लियर नहीं बोलता है बट कोशिश हाँ, करता है, कोशिश करता है, राइट, दैट्स इम्पोर्टेंट। ओके। बाय 1 year एटलीस्ट फ्यू 1-2 शब्द बोलता ही है, ये एकदम क्लियर होने चाहिए, बाबा, मम्मा, हाँ पापा। हाँ, 1-2 शब्द बोलता ही है बच्चा, तो वेरी बाय 1 year, बाय 2 years एटलीस्ट स्मॉल सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस बच्चा कैन, मुझे पानी चाहिए, यस, मुझे ये नहीं चाहिए। हाँ, छोटे छोटे मे बी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बट एटलीस्ट फ्यू वर्ड्स जो रोज के बोलते हैं हम कि हाँ इकड़े ये, खाना दे, हाँ, ऐसे छोटे छोटे फ्यू वर्ड्स, 2 नहीं to 3 चाहिए। वर्ड्स, हाँ, ओके, होता ही है 2 to 3 months, वेरी गुड। हाँ, ओके। सो यूजुअली बाय 3 years सिंपल सेंटेंस कंप्लीट आता ही बच्चे, 36 months तक जो हम बोलते हैं, राइट, okay. So very important fact कि if your baby is 3 to 4 years and still बच्चे को
शब्द भी नहीं बोलने आ रहा है, then it is a very clear sign कि you should visit pediatrician. इनफैक्ट आपके मानने के हिसाब से तो मुझे लगता है बाय सेकेंड बर्थडे इटसेल्फ अगर बच्चा एक भी वर्ड नहीं बोल रहा है, Right. तो फिर बच्चे को दिखाने की जरूरत है. मतलब Right. लेट बोलता है तो ठीक है, बट इतना लेट भी नहीं होना चाहिए कि एक भी हाँ वर्ड जी. नहीं आ रहा है. हाँ, बिकॉज कुछ कुछ नॉर्मल चाइल्ड भी जिनके माइलस्टोन्स, ये जो है डेवलपमेंट जिसको हम माइलस्टोन्स बोलते हैं, कभी कभी 3 मंथ्स के लेट होते भी है, बट ज्यादा लेट एज यू सेड कि 2 साल के बाद भी बच्चा एक भी शब्द नहीं बोल रहा है, देन इट इज अ अलार्मिंग साइन. राइट. देखो घर में कभी कभी कैसा होता है, तोते का झूठा पेरू खिलाओ, मतलब हाँ. तो बच्चा बोल लेगा. बिकॉज इसमें आप लोग तोतले बोलने की बात नहीं कर रहे हैं ना नेहा. राइट. नो नो, नॉट गुड. हाँ, बिकॉज बहुत सारे बच्चे से बोलते हैं ना, स गायब हो जाता है, र गायब हो वो जाता है. डेवलपमेंट में होता है ना, बच्चा सीख हाँ, रहा है, जो प्रिसीजन है बोलने का राइट. वो धीरे धीरे ही डेवलप होता है. राइट. सो हम लोग यहाँ पे तोतलेपन की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल ऑफ यू लिसनर्स. हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बोलने की बात कर रहे हैं कि बच्चा बोल हाँ ही हाँ, नहीं रहा है. बोल Let me ही ask- नहीं रहा. जैसे एक पेरेंट्स थे, उन्होंने मुझे बोला था नेहा कि उनका बच्चा 8 से 10 वर्ड बोलता है सेकेंड बर्थडे तक. बाबा, पानी, दे दे, घे, ले, खिलौना, मतलब टॉय, उतना टॉय बोलता बोलता था. है. बट सेंटेंस नहीं बनाता था, दो चीजों को मिक्स करके. बट आई थिंक दैट्स ओके, द वे यू सेड कि अगर इतने सारे वर्ड बच्चा बोलता है तो वो सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन हाँ, समझने के लिए पेरेंट्स हैव टू कीप कम्युनिकेटिंग. right. Parents have to keep communicating. Let ओके, them child explore. वही. लवली लवली. थैंक यू सो मच नेहा. आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स गूगल को देख देख के बहुत कुछ बच्चों में ऑब्जर्व करते हैं. नेहा ने यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि आप कॉन्स्टेंटली क्या बोलते हैं इसको, जासूस की तरह बच्चे के आगे, अच्छा बच्चे ने ये किया क्या, अच्छा बच्चे ने ये किया क्या, बच्चे ने क्या किया. नो, यू हैव टू एंजॉय योर मदरहुड एंड Right. पेरेंटहुड. बट ये कुछ बहुत ब्रॉडर चीज है जो आप लोग को पता होनी चाहिए कि अगर ये नहीं होता है देन आपको एक स्टेप आगे जाना बहुत जरूरी है. बाय द वे ऑल ऑफ यू, जितने भी स्टेजेस नेहा ने बोली उसमें माइल्ड स्टेज होता है, मॉडरेट स्टेज होता है और हाई स्टेज होता है. Right. कई बार बच्चों में, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों में बहुत माइल्ड स्टेज में होता है. अगर बहुत जल्दी हम लोग उसको पिकअप कर Catch लेंगे, करो. ट्रीटमेंट करेंगे, तो बच्चा विल बी जस्ट लाइक अदर चिल्ड्रन एंड देयर इज नो इश्यूज विद द किड्स एट ऑल. और अगर थोड़ा सा, हाँ यस नेहा. 1.2 mention. यूजुअली डेवलपमेंट स्क्रीनिंग जो होता है डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जो करते हैं, नॉट नेसेसरी कि अगर अपना बच्चा 3 या 5 महीने का है एंड नेक फोल्डिंग नहीं कर रहा है तो ही हम डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं. यूजुअली ये जो स्क्रीनिंग होता है, नॉर्मल भी बच्चा अगर बॉर्न होता है एंड सब नॉर्मल माइलस्टोन्स भी है, बट आफ्टर एवरी 3 मंथ्स अगर बच्चा अपना कर रहा है नहीं कर रहा है, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जाके हमने उसका डेवलपमेंट चेक करना ही चाहिए, वेदर इट इज नॉर्मल फॉर हिज एज. ये जो स्क्रीनिंग ऑसम होता है ये यूजुअली होना ही चाहिए, बट अपने सोसाइटी में उतना फॉलो नहीं किया जाता. पॉइंट. बट बहुत सारे पेडियाट्रिशियन ने आजकल चेक करते हैं. वो लोग हेड हाँ, सरकमफरेंस चेक करते हैं, वो लोग हाइट चेक करते हैं. सो फॉर ऑल ऑफ यू, आपका हर बार जब भी पीडीओ विजिट होता है, मतलब आपके डॉक्टर के पास जाते हैं, तभी डॉक्टर हेड सरकमफरेंस चेक करते हैं, हाइट चेक करते हैं बच्चे का, बच्चे के लेग मूवमेंट्स चेक करते हैं. right. इनफैक्ट आप लोग को ऑब्जर्व होगा कि बच्चा जब भी इंजेक्शन भी लेता है, तो अगर बच्चा रोता है, दैट्स आल्सो वेरी गुड साइन फॉर डॉक्टर. ओके, हाँ ठीक है, बच्चा अच्छे Yes. से कर रहा है, बच्चे को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, वो होना चाहिए होना ही चाहिए. इन अ वे. फिर डॉक्टर यूजुअली आप लोग को पूछता है कि वॉशरूम कितने बार हो रहा है, बच्चा फीडिंग तो ठीक से ले रहा है कि नहीं, बच्चा पीसफुल सोता है कि नहीं, सोने जगने का साइकिल ठीक से है कि नहीं. सो आई थिंक जब भी नेहा बोल रही है स्क्रीनिंग, वहाँ पे ये सब बेसिक क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो Right. आपको नॉर्मली पेडियाट्रिशियन पूछता है. Right. सो इंश्योर दैट आप पेडियाट्रिशियन के विजिट्स मिस ना करो, हाँ, करें. वैक्सीनेशंस मिस ना करो, टाइम टू टाइम चीजें करो, और स्ट्रेस फ्री रह के मदरहुड और पेरेंटहुड एंजॉय करो. एंजॉय करो. राइट, टोटली. थैंक यू सो मच नेहा फॉर दिस एंटायर टॉक, बिकॉज अर्ली साइंस जानना बहुत जरूरी है आई थिंक किसी भी पेरेंट के लिए, ताकि चीजें बहुत आगे जाने के बाद करेक्शंस में भी राइट. उतना ही टाइम लगेगा.